So 2021 में मेरा स्कोर था नीट का फिजिक्स का वो था 58। वहां से स्कोर गया है 2022 में 156, ऑलमोस्ट 98 और 100 मार्क्स इंक्रीज इन नीट फिजिक्स। सो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और इसीलिए टुडेस वीडियो यू हैव टू सी द होल वीडियो टू। So guys, I am Arjit Maji and in this video we'll be talking about how to crack NEET with a physics score of 150 plus. Yes, it's a it's a struggle for many of you to score in physics 150 plus. I know it is very tough, very much tough it is for me also. But if I can do it, I am surely saying yes, it can be done by you. बिकॉज नीट फिजिक्स आपको मास्टर डिग्री वहां पर नहीं करना है, नीट फिजिक्स में आपको स्कोर लाना है और इसीलिए हर एक चैप्टर का कोई एक बर्डन होता है, यहाँ तक पढ़ना है वो चैप्टर का एक टॉपिक का एक कोई भी तरह का क्वेश्चन आता है वहां से हो जाता है. सो विल बी डिस्कस अबाउट 4-5 पॉइंट्स. फर्स्टली माय नीट स्कोर इन दिस ईयर इट इज 156. 39 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड एंड 39 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 156. So yeah, I am eligible to say that how to score NEET Physics with a score of 150 plus. So let's start today's video with 4 or 5 top topic, which is a question of many more students like you, that how to be there with the NCERT Physics. What is the approach to read NCERT? So I am saying clearly that I am not that much followed NCERT because I am from a Bengali medium, but obviously I am saying that NCERT reading is not that much important, but एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक रहता है हर चैप्टर के बाद में वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां से बहुत रिलेटिव टाइप का क्वेश्चन आता है. सो इट्स वेरी मच नेसेसरी टू डू दैट क्वेश्चंस एज they will build the concept much more stronger in your mind, and it will help to you to remind the questions as much as possible at that time of the exam hall, which is very much fruitful approach according to me. So for NEET NCERT I am saying clearly, don't read the book thoroughly. It is also a different thing that this concept differs from one to another. But for me, if you ask me, that I am saying the question bunch of NCERT, don't read it. For me, I am saying clearly it is differ this suggestion from person to person. So you can view also by your view. What is your viewpoint for NCERT? But for me, NCERT for physics reading is not that much important. But questions are very much important. So let's turn to a second topic of today, and which is making should be your first approach to score 150 plus in NEET Physics. Yes, I am saying right. Concept making is very much important. If you ask any NEET aspirant here, that concept making is far better than doing or you can say reminding the questions one by one, because उतने questions आपको नहीं उस दिन याद रहेगा. वो 3 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट में अगर फिजिक्स करोगे और फर्स्ट में भी करो ना, उस 3 आवर में इतना प्रेशर अपने अंदर बिल्ड हो जाएगा, एक एड्रेनल रश क्रिएट हो जाएगा कि उसके लिए जो क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो याद है बहुत बार कॉन्सेप्ट को आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो वही सिर्फ आपको याद रहेगा. और कोई भी चीज, सो आप जिस भी कुछ भी जो भी टीचर है, ये डजंट मैटर, कोई भी टीचर से आप लेक्चर देख रहे हो, यू सीइंग द लेक्चर, द फर्स्ट अप्रोच शुड बी दैट आफ्टर सीइंग द लेक्चर प्लीज बिल्ड द प्रॉपर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. आफ्टर दैट go for handwritten notes writing. You have seen one topic in the video. After seeing it, please make handwritten notes. I am saying in the next topic also about handwritten notes clearly. But now the thing is, concept making is your main approach, because वो concept ही है जो 3 आवर उस एग्जाम हॉल में 3 आवर 320 whatever याद रहेगा. बाकी सब कुछ आपके माइंड से निकल जाएगा वो प्रेशर में जो एक्स्ट्रा क्रिएट होता है एग्जाम के लिए. So turn to our third topic, which is handwritten notes. So मैं आप लोग क्या करते हो जानते हो, ये टीचर और एक जो भी मेल टीचर फीमेल टीचर दादा दीदी जो नीट क्रैक करके बैठे, उससे दादा मुझको दे दो ना एक टेलीग्राम अकाउंट दे दो, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हैंडरिटन नोट्स आप मुझको भेजोगे, वो हैंडरिटन नोट को हम लोग डाउनलोड करेंगे, उससे हम लोग स्टडी करेंगे. अरे ये अप्रोच छोड़ दो, मैं अभी कह रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता है ये देख के. ये अप्रोच क्या करके, तुम बहुत लोग मुझसे भी कमेंट करते हो कि शॉर्ट नोट्स दे दो भैया, हैंडरिटन नोट्स दे दो. उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता. मेरा नोट्स पढ़ के तुम्हारा क्या जाएगा, घंटा जाएगा तुम्हारा. मैं क्लियरली कह रहा हूँ, कुछ नहीं फोड़ पाओगे. अगर एक नोट नहीं लिख सकते, शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, तो क्या करोगे तुम अपनी लाइफ में. डॉक्टर बनना है, वहां पर बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा अप्रोच रहेगा एक पेशेंट को आपको स्वस्थ बनाने में. तो यहाँ पर हैंडरिटन नोट्स हम नहीं बना सकते अपना ड्रीम के लिए, फिर ड्रीम देखा ही क्यों है. सो प्लीज मेक हैंडरिटन नोट्स. अभी मैं जानता हूँ अभी डिजिटल नोट्स का जमाना है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट हैंडरिटन नोट्स इज मच मोर बेटर एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर द नीट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम देन द डिजिटल नोट्स. बिकॉज एग्जाम से पहले वही नोट्स ही होंगे जो आपको याद रहेंगे. बाकी नोट्स आपका यहाँ से ये खोपड़ी से आउट हो जाएगा. वो हैंडरिटन नोट्स ही है जो आपको पता है कि ये नोट मैंने क्यों लिखा था, किस लाइन को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, किस लाइन को मैंने कम इंपॉर्टेंट दिया था. सो प्लीज आई एम सेइंग इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज मेक हैंड रिटन नोट्स.
So let's turn to our fourth topic is which books to use. Many of you are asking about that. I know that which books to use for NEET physics, chemistry, biology. So in our second video we will be studying about how to score in chemistry and then biology. So because physics is very much necessary, the approach of scoring in physics. So in our fourth topic we'll be discussing about the books and the books I have followed. Obviously जो फिजिक्स का मॉड्यूल है यकीन का वेरी मच फुली प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि अलग पांडे सर का मैं फैन हूँ, ये वगैरह वगैरह जो मैं बहुत लोग कहते हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट फिजिक्स के लिए यकीन का जो मॉड्यूल है और केमिस्ट्री और बायो यू कैन से it's very much relevant. So I am requesting you to solve a module totally thoroughly after solving that, and NCERT modules are very much important. एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक अगर आपको जानना भी है तो वहाँ पर वो दिया भी हुआ है. एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो टॉपिक्स है उसके पहले वो टॉपिक के बारे में थोड़े शॉर्ट नोट्स टाइप का एक दिया हुआ है हर एक मॉड्यूल में है यकीन का. सो वो आप कर सकते हो. मैंने भी किया, हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था नीट का जो मॉड्यूल आता है फिजिक्स का. उसके बाद अगर आप चाहो कि अरिहंत का 30 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है नॉट ओनली फॉर नीट बट ऑल्सो जिपमार और अदर्स WBJE सब क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर. जो अरिहंत का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दिया रहता है 30 ईयर्स का या 15 ईयर्स का. सो आप कर सकते हो फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट मच मोर स्ट्रॉन्गर. इट्स द बुक रिकमेंडेड बाय यू. AC वर्मा ये सब टाइप का कुछ नहीं करना है आपको. सिर्फ एक बुक में स्टिक करो, मॉड्यूल में स्टिक कर जाओ फिजिक्स वाला का, और कोई भी एक बुक उठा लो उसको सॉल्व करो. हर सर कहते हैं, मैं भी कहूंगा एक बुक को 10 बार करो, ना कि 10 बुक को एक बार करो प्लीज. तो एक बुक को उठा लो और ऐसे ही शुरू कर दो. उस बुक से अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस. और ये हमारा फोर्थ टॉपिक खत्म होता है. So let's go to our fifth topic. Fifth topic is chapter wise approach and weightage wise approach in physics. So I'm clearly saying that chapter wise or weightage wise it doesn't matter, because you are here to crack NEET, and in all India or you can say in top colleges of state quota also, especially in my opinion in West Bengal, 620 plus marks is very much necessary, because challenges will be tougher than this year by year, and there will be increasing the cutoff will be increasing year by year. So you have to do every question, because यार समझो ना, यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है या दो. मैंने सोचा कि एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है. वेव्स है, एक ही क्वेश्चन आएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा पोर्शन है तो वहां से एक क्वेश्चन आएगा. तो एक क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका टारगेट होगा 180. एक क्वेश्चन करते बहुत क्वेश्चन छोड़ जाएगा वहां पर. सो ये अभी ऐसा जमाना नहीं रहा कि 480 और 500 कट ऑफ है, सो कुछ चैप्टर्स हम लोग छोड़ देंगे. उससे क्या होगा, जो एक और क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है. हर एक चैप्टर को आपको करना पड़ेगा. अब ये मैंडेटरी हो चुका है फॉर योर मार्क्स टू क्रैक नीट एंड टू बी इन योर ड्रीम कॉलेज. ओके, सो प्लीज गो थ्रू एवरी चैप्टर and its questions, whether it is unit and dimension. उसके बाद काइनेमेटिक्स आएगा, लॉज ऑफ मोशन आएगा, फ्रिक्शन आएगा. वहां पर एकदम 12 में जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तक, यहाँ पर 11 में आपको मिलेगा वेव्स बहुत अच्छे से पढ़ना. वेव्स के साथ रिलेटेड होगा SHM आएगा. एसेंस का जो क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट भी है वहां पर. सो मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर भी होते हैं. मैं कह रहा हूँ ड्यूअल नेचर और मेटल ड्यूअल नेचर जो एक चैप्टर है वहां पर भी बहुत सारे टॉपिक है. एटम और न्यूक्लियर आपने केमिस्ट्री भी पढ़ रखा है. केमिस्ट्री में वही थोड़ा सा इधर उधर, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा. हाँ, मुझे पता है कि साइन कन्वेंशन थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम बाय सेम ही है वो सब. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे तरह से पढ़ना. उसके बाद ऑल्टरनेटिव करंट में जाओगे. ऑल्टरनेटिव करंट में फिर सर्किट का प्रॉब्लम्स वहां पर होगा. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे तरह से करना. फिर ऐसे क्या होगा ना, चैप्टर वाइज वेटेज जब आप चलते जाओगे, और 5 मंथ्स है अभी, उतना सोचने का समय भी नहीं है. एक चैप्टर उठाओ, स्टार्ट करो, पढ़ लो, लेक्चर्स देखो. हर डे 1-2 लेक्चर्स देखना पड़ेगा ही. अब 2 क्रॉस स्पीड में देखो, लेक्चर देखा, हैंड रिटन नोट्स लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, प्रैक्टिस किए, खत्म बात. ऐसा आपको जाना ही पड़ेगा आप, क्योंकि आपके ड्रीम के लिए वक्त पर 1 साल नहीं बचा है. इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको करना ही पड़ेगा. यू हैव टू डू दैट. सो एक चैप्टर उठाओ, उसको खत्म करो, नेक्स्ट चैप्टर में जाओ. यही आपका अप्रोच होगा. कौन चैप्टर से वेटेज ज्यादा, किसमें कम, ये सब सोचने का बात ही नहीं है. अब रोटेशनल मोशन में जाए, रोटेशनल मोशन 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं शायद. तो यहाँ से क्या करेंगे, हम उस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. उसको मास्टर डिग्री करने जाएंगे, रोटेशनल मोशन टफ लगेगा, उससे डिमोटिवेट होंगे और 2 चैप्टर हम लोग छोड़ के आ जाएंगे. ये नहीं करना है. जितना चाहिए उतना करो. एवरी चैप्टर को इंपॉर्टेंस दो. यूनिट एंड डायमेंशन से अगर 2 क्वेश्चन भी आता है, वो 2 क्वेश्चन भी आपको जो नंबर देगा, रोटेशनल मोशन के 2 क्वेश्चन भी आपको सेम नंबर देगा. ये बात याद रखना. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो आपको पता होना चाहिए कि वेटेज इज नॉट अ मैटर नाउ. Now 5 months you have in your hand. So here the chapter is matter, not the weightage. Okay. So every chapter करो. हर एक चैप्टर पढ़ते जाओ, करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ. एक दिन ना एक दिन उस चैप्टर में आपको यहाँ पर वो चैप्टर ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगा. So let's
turn to our next topic, sixth topic, which is about practice. You know, practice makes a man perfect. We all know that. But in physics, not only it's make a man perfect, it is necessary to be imperfect also. Some not only purely perfect, but if you have to being a simply perfect in physics, you have to practice as much as possible. Because without practice, the concept will be not that much longer in your mind. But practice will make the concept longer in your mind and it will help to remind it time by time. Because क्या होता है देखो, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था 58 स्कोर, 58 स्कोर में क्या हुआ, मैंने प्रैक्टिस बहुत कम किए थे. सब फॉर्मूला आते थे मुझको, ये आते थे वो आते थे, सब फॉर्मूलाज रटा हुआ था फॉर्मूलाज. बट मुझको प्रॉब्लम क्या था, मुझे पता है तुम लोगों को, मेरा जो फिजिक्स का जो है ना प्रैक्टिस बहुत कम था. इसलिए क्या हुआ, मैंने हर एक चैप्टर से ऐसे सर ने जो किया, अलग पांडे सर ने किया था वो उससे कर लिया. मैंने सोचा यार ये मुझको हो रहा है तो अभी एग्जाम हॉल में तो सभी हो जाएगा मेरे से, सब हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा फिजिक्स का. अगर वो एक अलग टॉपिक है कि 3 आवर मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा. आपके दिमाग में सिर्फ वही रहेगा जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो. क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा, वो एक कॉन्सेप्ट से 5 और 6 और 7 जब आप क्वेश्चंस कर लोगे तो वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ऐसे परमानेंटली जो कहता है स्टोर हो जाएगा. और स्टोरेज जो है वो नीट के एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन एक बार और 2 बार पढ़ने का टाइम मिलेगा तुमको राफली, उससे ज्यादा नीट में समय नहीं मिलेगा. और एक बार पढ़ के अगर कोई क्वेश्चन करना है इन फिजिक्स, देन यू हैव टू बी वेरी मच परफेक्ट इन योर कॉन्सेप्ट. और वो एक तरह से ही हो सकता है, एक ही वे है कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करना, वो है प्रैक्टिस. सो प्लीज इंक्रीज द प्रैक्टिस ऑफ फिजिक्स 2 times देन द अदर सब्जेक्ट्स. So let's turn for today's last topic. So the last topic of today, which is I think the 7th topic, and it is how to make short notes. Dang 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 dang. So short note कैसे बनाना है, ये एक अगर आप लोग पूछोगे तो एक और 2 चैप्टर को अगर छोड़ दे तो सारे शॉर्ट नोट्स ही हैं आई थिंक मेरे पास. सो शॉर्ट नोट्स मैंने क्यों आप लोगों को डिलीवर नहीं करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप लोग क्या कर देगा मुझको पता है. शॉर्ट नोट अगर मैं दे दूंगा तो आप लोग शॉर्ट नोट्स अपना नहीं बनाओगे, ये कॉन्फर्म है. कोई भी नहीं करता है. हमारा दिमाग ऑलवेज शॉर्ट पथ में जाना बहुत पसंद करता है, हम लोगों को भी पता है, आपको भी पता है. और इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स नहीं दे रहा हूँ. मगर आप लोग अगर चाहते हो तो मैं 1 और 2 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स दे सकता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन में भी आ रहा होगा शायद. इससे क्या होगा, आपका जो आप लोग समझ पाओगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है. 1 और 2 चैप्टर का मैं दे ही सकता हूँ, हीट का दे दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स और कोई भी 1-2 चैप्टर का दे दूंगा. इससे आप लोगों को हेल्प होगा ऑब्वियसली शॉर्ट नोट बनाने में, कैसे बनाना है. सो अगर अप्रोच के बारे में बताना भी होगा तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना है कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उस टॉपिक्स को. और क्वेश्चन अगर नहीं भी देखोगे तो टॉपिक्स जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टॉपिक को लिखे, उसके साथ कोई इमेज अगर सेटअप होगा उसके साथ तो इमेज भी वहां पर ड्रॉ कर ले. उसके बाद टॉपिक लिखे, टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट कोई यूनिट वगैरह होगा वो पास में रहे. और उसके बाद नीचे में आपको फॉर्मूला अंदर में लिखना है और फॉर्मूला के अंदर में आपको सर्कल कर देना है कि इस टॉपिक के से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है. और एक फ्लोचार्ट टाइप्स का भी आप लोग बना सकते हो. सो ये मैटर करता है. अब मैं कह रहा हूँ इसीलिए ना शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ. आपको पता है कौन सा टॉपिक आपका वीक पॉइंट है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. डॉक्टर अगर सभी पेशेंट को सेम डोज का मेडिसिन देगा तो सबके लिए अप्लाई नहीं होगा. इसीलिए आपको भी शॉर्ट नोट्स को अलग अलग करके बनाना है, क्योंकि मेरा जो वीक पॉइंट था वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है. प्लीज कीप इट इन योर माइंड. So let's ending today's video. Thank you for seeing the whole video. In the next video we'll be discussing about how to score 140 or 150 plus in chemistry. Then we'll be discussing about 330 plus how to score in biology. Sorry, not in physics 330. अगर possible होता तो शायद हम लोग कर लेते because नंबर का बहुत बुक है हम लोगों का. सो यहाँ पर ये हमारा वीडियो खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग. प्लीज शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब कर दो. 1K सब्सक्राइब होगा, जितना जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा उतना जल्दी मैं अपना पैसे से कुछ कर पाऊंगा चैनल के लिए. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. लाइक भी कर दो ना एक प्लीज प्लीज.